آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ صحبت کے 20 طریقے جانیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں یہ سوال آپ ہی لوگوں کے پوچھے ہوئے سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم لوگ شرم کے مارے کسی بھی علماء سے ایسے سوال نہیں پوچھتے ہیں۔ یہ ویڈیو شاید آپ کو سننے میں اچھا نہ لگے، لیکن انشاءاللہ مجھے اتنی امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور آپ لوگ بہت ساری ایسی باتیں جانیں گے جو شادی کے بعد کرنا حرام اور ناجائز اور مکروہ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوال آتے ہوں گے، بیوی سے صحبت کس طرح سے کریں، بیوی کے پیچھے کے مقام سے صحبت کرنا کیسا ہے، کیا کھڑے ہو کر صحبت کر سکتے ہیں، اس طرح سے بہت سارے سوالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں، لیکن ان کا صحیح جواب حدیث میں نہیں مل پاتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کمبائن ویڈیو بنائی جائے جس میں سبھی سوالوں کے صحیح جواب ایک ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیے جائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اسلام میں کون سے صحبت کرنے کے طریقے حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور ہم لوگ جانے انجانے میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کا اثر ہماری نسلوں پر پڑتا ہے۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ کرتے ماں باپ ہیں اور بھرتے بچے ہیں، اور کبھی کبھی کرتے بچے ہیں اور بھرتے ماں باپ ہیں۔ تو یہ سب ہم لوگوں کی اپنی غلطیوں کے نتیجے ہوتے ہیں۔ تو دوستو جانتے ہیں پہلا سوال۔ نمبر 1، حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنا عجب تنابل یعنی کہ اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر منی کو خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حیض کے دوران بیوی سے صحبت نہیں کرنا چاہیے، اور صحبت کے علاوہ کسی اور طریقے سے مرد یا عورت اپنے جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے حیض کے دوران بیوی سے صحبت نہ کریں اور نہ ہی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو اپنائیں۔ نمبر 2، کیا بیوی اپنے شوہر کا عجب تنابل یعنی کہ شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو فارغ کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو پکڑ کر یا اس کی مالش کر کے یا اس کو رگڑ کر شوہر کی منی کو نکال سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پیارے دوستو، اسلام میں ماسٹر بیسن یعنی کہ ہاتھ سے منی نکالنا، پھر چاہیں وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، دونوں ہی ماسٹر بیسن کہلائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر کا عجب تناسل کو پکڑ کر یعنی کہ اپنے شوہر کے لنگ کو پکڑ کر اس کو فارغ کرتی ہے یعنی کہ اس کی منی نکالتی ہے، تو وہ بھی ماسٹر بیسن ہی کہلائے گا۔ اسلام میں اس کو ناجائز اور مکروہ تنظیمی کہا گیا ہے، اسی لیے اس کام سے بچیں اور ایسا بالکل نہ کریں۔ نمبر 3، کیا صحبت سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، ہم بستری سے پہلے شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے۔ مطلب میاں اور بیوی صحبت سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے کپڑوں کو اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مکمل ننگے ہو کر یا پورے ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے، اسی لیے ایسا کرنے سے بچیں۔ نمبر 4، کیا بیوی کے پچھلے حصے سے صحبت کرنا جائز ہے؟ پچھلا حصہ یعنی کہ بیک سائیڈ سے صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پیارے دوستو، اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے سے صحبت کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے پر مجبور کرے یا پھر اس کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو ایسے کام کے لیے بالکل روک دے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے ہم دونوں گناہ گار ہوں گے، لہٰذا بیوی کے پچھلے حصے سے صحبت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کے نوجوان جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی حرکت نہایت ہی غلط طریقہ ہے اور حرام بھی ہے۔ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے،
वो निकास की जगह होती है। जिस्म का गंदा पानी वहाँ से बाहर निकलता है जो नापाक होता है, और अगर वो मुंह में चली जाए तो हराम है, इसीलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बीबी के पिस्तानों के बीच क्या शौहर अपने नक्श को रगड़कर अपनी मनी को निकाल सकता है और अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना जायज़ है? इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी से मुताल्लिक था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंसान अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सिर्फ मर्द या औरत की शर्मगाह का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इस्लाम में इजाज़त नहीं दी गई है, तो इसीलिए ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच में अपना नक्श रगड़ना सही नहीं है, क्योंकि उस पर आपके बच्चे का हक है, आपका हक उस जगह पर नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है। आप उस जगह को नापाक कर दोगे तो आपके बच्चे पर इसका असर पड़ेगा। नंबर 7, क्या मियाँ बीबी यानी कि शौहर और बीबी दोनों रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं? क्या दोनों एक साथ नंगे होकर सोते हैं तो क्या दोनों गुनहगार होंगे? तो दोस्तों, मियाँ बीबी दोनों एक साथ नंगे होकर सोते हैं, इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है, तो इसीलिए पूरी तरह से नंगे होकर ना सोएं, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 8, बीबी की आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीबी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए सोहबत करना, या बीबी अपने शौहर की आंखों पर कपड़ा बांधकर या हाथ और पैर बांधकर खेलते हुए सोहबत करें, तो क्या ऐसा करना सही है? प्यारे दोस्तों, मियाँ और बीबी दोनों की रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर बीबी राजी है तो शौहर अपनी बीबी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए सोहबत करने के इरादे से बीबी के हाथ पैर भी बांध सकता है और सोहबत कर सकता है, मगर रजामंदी दोनों की होना ज़रूरी है। इस तरह बीबी अगर अपने शौहर के साथ ऐसा करना चाहें तो दोनों की रजामंदी से कर सकते हैं, मगर बार बार ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है। नंबर 9, क्या शौहर अपनी बीबी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं पर भी मनी को खारिज कर सकता है? प्यारे दोस्तों, अगर शौहर अपनी बीबी के जिस्म पर कहीं पर भी मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो मास्टरबेशन कर रहा है, यानी कि हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने पहले भी बताया है, इस्लाम में मुस्तजनी करना मकरूह तंजीमी है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे के जिस्मी ख्वाहिशात को एक दूसरे के साथ सोहबत करके ही पूरा कर सकते हैं। नंबर 10, बीबी के पूरे जिस्म पर कहीं पर भी मीठी चीज़ लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है? मतलब बीबी के जिस्म पर कहीं पर भी चॉकलेट या क्रीम लगाकर ज़बान से उसको चाटना कैसा है? तो प्यारे दोस्तों, बीबी के जिस्म को ज़ुबान से चाटना दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीबी की पेशानी या गाल पर करें, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा, जानवर जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के जिस्म को ज़बान से चाटना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या फिर कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। नंबर 11, क्या बीबी अपने शौहर की नक्श को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? शौहर का बीबी और बीबी का शौहर के जिस्म पर पूरा हक होता है। बीबी अपने शौहर के किसी भी हिस्से को जब चाहे छू सकती है, पकड़ सकती है। शर्मगाह को छोड़कर बाकी पूरे जिस्म को चूम भी सकती है। शर्मगाह को मुंह में लेना मकरूह है, बाकी आप अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को चूम सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 12, क्या शौहर अपनी बीबी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर चाहे अपनी बीबी के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है,
और चूम भी सकता है, सिर्फ शर्मगाह को छोड़कर। यानी आप अपनी बीबी की शर्मगाह को छोड़कर, यानी अपनी बीबी की शर्मगाह को मुंह में नहीं ले सकते या वहां पर अपना मुंह नहीं रख सकते हो। बाकी आप अपनी बीबी के किसी भी हिस्से को चूम सकते हैं, हाथ लगा सकते हो, छू भी सकते हो। नंबर 13, क्या बीबी अपने शौहर के नक्श को मुंह में लेकर चाट सकती है या शौहर के नक्श के किसी भी हिस्से को बीबी अपने मुंह से चाटे? क्या ऐसा करना गुनाह नहीं होगा? तो दोस्तों, अभी आपको बताया गया मियाँ बीबी दोनों की शर्मगाह को एक दूसरे के मुंह में लेना या चाटना बिल्कुल मकरूह है और हराम भी है। इसीलिए मियाँ और बीबी दोनों को इस हरकत से बचना चाहिए। नंबर 14, शौहर के कहने पर बीबी रात को शौहर के साथ मुस्तजर कपड़े उतारकर सो सकती है, यानी पूरे कपड़े ना पहने, सिर्फ शर्मगाह और पिस्तान को ढकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करके अपने शौहर के साथ क्या सो सकती है? बीबी अपने शौहर के सामने मुस्तजर कपड़े पहनकर आना ये जायज़ है, यानी बीबी अपने शौहर के सामने छोटे कपड़े पहनकर या सिर्फ अपनी शर्मगाह को ढककर आ सकती है और रात को सो भी सकती है, ये जायज़ है। नंबर 15, क्या मियाँ बीबी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मियाँ और बीबी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, शौहर और बीबी दोनों की शर्मगाह ढकी होनी चाहिए। मतलब बीबी अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और शौहर अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके, उसके बाद दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 16, क्या मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे के जेरे नाफ के बाल काट सकते हैं? यानी जो शर्मगाह के ऊपर बाल होते हैं, क्या शौहर अपनी बीबी और बीबी अपने शौहर के बाल काट सकती है? ऐसा करना जायज़ है या नहीं? तो इसका जवाब है मियाँ और बीबी यानी एक दूसरे की शर्मगाह के बाल यानी जेरे नाफ के बाल नहीं काटना चाहिए। अपनी अपनी शर्मगाह के बाल काटें, मगर एक दूसरे के बालों को काटना ये अदब के लिहाज से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर मजबूर है यानी कि बीमार है या फिर किसी भी मजबूरी में है जिसकी वजह से वो अपने हाथों से जेरे नाप के बाल नहीं काट सकता है, ऐसे में हुक्म है कि उसकी बीबी उसके जेरे नाफ के बाल काट सकती है। इसी तरह अगर औरत बीमार है यानी उसकी बीबी बीमार है या किसी भी वजह से वो अपने शर्मगाह के बाल को साफ नहीं कर सकती है, तो ऐसी सूरत में उसका शौहर उसके जेरे नाफ के बाल को काट सकता है। सिर्फ शौक या मजे के लिए ऐसा करना गलत है और मकरूह है। नंबर 17, क्या पूरे कपड़े उतारकर सोहबत करना जायज़ है? प्यारे दोस्तों, जब मियाँ बीबी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे ख़त्म हो गए। अब शौहर और बीबी जिस हालत में चाहें उस हालत में सोहबत कर सकते हैं, ये जायज़ है। एक हदीस मुबारका में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक दुनिया में रहें तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी आपका जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस मुबारका में है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हयाओं को पसंद करता है, लिहाजा अगर आप इस हदीस को सामने रख कर देखते हैं तो मालूम ये चलता है कि पूरे कपड़े उतारकर सोहबत करना जायज़ तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी ना दिखे। नंबर 18, क्या एक रात में बीबी के साथ कई बार सोहबत कर सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, अगर शौहर के अंदर इतनी कुव्वत यानी कि इतनी ताकत है और बीबी भी राज़ी है तो जितनी बार चाहें उतनी बार एक रात में सोहबत कर सकते हैं। लेकिन एक रात में कई बार सोहबत करना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर की जिस्मी ख्वाहिशात कम होने लगती हैं और वो कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए एक रात में एक बार सोहबत करना ज़्यादा बेहतर है। नंबर 19, सोहबत से पहले बीबी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म को मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना सही है? क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं?
नहीं। प्यारे दोस्तों, सोहबत से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म की मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है। अगर शौहर का सोहबत करने का मन है और बीवी राज़ी नहीं है तो ऐसे में शौहर अपनी बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 20, क्या खड़े होकर या बैठकर सोहबत करना जायज़ है? तो प्यारे दोस्तों, सोहबत करने का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेटकर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर सोहबत करने से मना भी नहीं किया गया है। लेकिन बैठकर या खड़े होकर सोहबत करने से औरत के बांझ होने का खतरा है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा जिक्र तो नहीं आया है, बस एक जगह पर आया है कि बीबी के पिछले हिस्से को यानी कि पीछे के मकाम को छोड़कर बाकी जैसे चाहें वैसे सोहबत कर सकते हो, मगर बेहतर तरीका लेटकर ही होता है। प्यारे दोस्तों, ये थे सोहबत से मुताल्लिक ऐसे सवाल जिसके जवाब के बारे में हर मुसलमान को पता होना चाहिए। अब आप सभी मसलों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपके दिल में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। बाकी ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं। उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। हक बात आगे सुनकर उसको आगे बढ़ाना सदकाए जारिया है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।